Okay, so a very good morning to all of you, and as usual, welcome back. So tomorrow is CPT day, but as I have already told you, is that CPTs are not very tough, in the sense that I've already hinted that the same CPT is going to go for both NM1 and 2. So therefore, all these things have to also be taken into account. So therefore, it's not very tough. So therefore, if you are taking any by chance some tension in the mind, कईयों के messages आए थे, तो मुझे उससे कुछ लगा कि जैसे lot of you are in a little bit of pressure, ऐसे कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? I can honestly tell you that there is no need for that at all. I will repeat, at all. ठीक है ना? So therefore, be relaxed, be chill, ठीक है? मैं लेकिन आज कुछ और कहूंगा, दो चीजें कहूंगा पहले, and then we will start. First thing is that about the CPT, एक दो चीजें थोड़ा ध्यान रखना is that you will need two devices, ठीक है ना? You will need two devices. इसको थोड़ा ध्यान रखना. You will need two devices. So therefore, थोड़ा सा वो ready रख लेना. One device will be for little, like you will be keeping it a little far, ठीक है ना? Now, little far means your working area should be covered. I hope you're getting it. So you have to keep it at a distance so that the working area is covered and it is visible what you are doing in the working area. ये point थोड़ा सा याद रखना. और last moment glitches नहीं होने चाहिए. So therefore, keep two devices. ठीक है ना? Maybe for a day request one device from your parents also. ठीक है ना? So keep two devices. One will be for your invigilation, जो कि थोड़ा सा दूर रहेंगे, so that your working area table जो भी है is visible, and the other is of course the Google one, which you will be able to access the paper and then solve it. ठीक है ना? ये हो गया point number 1. इसी के अंदर एक point number 2 is there. हमें वीडियो ऑन रखनी है. हाँ जी बेटे, वीडियो ऑन रखने, ठीक है ना? ध्यान रखना, throughout the period videos will be on, and anybody whose video goes off will be removed from the classroom. So therefore, please take care of that. ठीक है? Should never go on. ये strictly ध्यान रखना, ठीक है ना? Because the moment it goes off means it may or may not be, but the presumption will be that maybe you are doing something activity. ठीक है? सर अगर कोई बच्चा ऑन ना करे तब बेटे फिर he won't be part of the classroom. He would be removed from the classroom. अगर कोई भी बच्चा ऑन ना करे तो कोई भी. Anyway, I think we are getting into unnecessary debate. Don't go. ठीक है ना? You are supposed to keep it on. That's the plain words. I mean, और इतने वो बीच में इतना मत वो क्या करो. जब बोला जा रहा है कि this is the rules, so follow it. I mean, don't start asking too many things. What will happen for this or that? This is the instruction, so keep that in mind. Your videos will be on, and जिनके videos off हो जाएंगे तो उनको classroom से नहीं classroom में permit नहीं किया जाएगा. So like they will be removed from the classroom. ठीक है ना? That's point number 1. अच्छा, point number 2 जो कि last में होता है, last में chaotic होता है, ठीक है ना? इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना is that last में जब paper submission होगा तो उसके 5 minutes पहले, 5 minutes prior, ठीक है ना? In the end, so 5 minutes prior, you will be given an instruction to stop. Stop means stop. Please do that. क्यों? क्योंकि उसके 5 minutes बाद के अंदर सबमिशन हो जाने चाहिए. I will repeat, उसके 5 minutes के अंदर सबमिशन हो जाने चाहिए. उस 5 minutes में क्या करोगे? मैंने थोड़ा बहुत हिंट कल दे दिया था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा जिस्ट में बता देता हूँ. Is that जब भी पेपर सबमिशन करोगे तो पेज नंबर 1 जो होगा, और वो इसलिए ना क्लासरूम यानी क्लासरूम बता रहा हूँ, एग्जाम के स्टार्ट होने के पहले ही कर लेना, क्योंकि अदरवाइज कई बार वो एग्जाम प्रेशर में हम भूल जाते है ना. इज दैट फर्स्ट राइट डाउन द नेम एंड रोल नंबर जो भी एलोकेट किया गया है, ये एकदम पेपर के स्टार्टिंग में ही जो है बता देना, ठीक है ना? एकदम पेपर के स्टार्टिंग में ही वो कर लेना, ठीक है? अच्छा, ये हो गया पेज नंबर 1. और इसी के अंदर पेज नंबर 1 के अंदर ही 1A 2B, तो राइट डाउन ओनली चॉइसेस, तो ओनली चॉइसेस ऑफ
ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना, सिर्फ चॉइसेस डालना है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेज में। विश्वास has asked a question that is binomial area under graph intersection of two graphs। देखो सिलेबस का पार्ट तो है बेटे विश्वास, अब आएंगे क्या ये बट यस इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। बाइनोमियल भी है और वो जो बता रहे हो इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स एंड ऑल आ सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीस थिंग्स। जो भी डिस्कशन हुआ है देखो वैसे सिलेबस बहुत कम है ना, कि मैं तो मोशन इन 1D डालने का भी सोच रहा था बट एक दो बैचेस में मोशन इन 1D खत्म नहीं हुआ अभी, इसलिए वो मना कर दिया, अदरवाइज मोशन इन 1D तो पार्ट ऑफ द होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्रुव गोयल दोबारा तो नहीं बताऊंगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और बाद में मुझे रिक्वेस्ट कर देना, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। एक्चुअली आजकल ना रिकॉर्डिंग तो किया जा रहा है, अपलोड भी किया जा रहा है बट उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। सो दोज आर इन नीड ऑफ सम डेज रिकॉर्डिंग एंड you just give me the message, I mean I will send you that is there। चल anyway, तो इसके बाद सुन लो, फर्स्ट पेज में ऊपर नाम रोल नंबर और उसके बाद फर्स्ट पेज में सारे आंसर चॉइसेस होने चाहिए। ये पेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें सिर्फ आंसर चॉइसेस किसके, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पेजेस, देखो ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस तो वैसे वाला नहीं होगा ना कि चॉइस देख के ही पता चल जाए, है ना। कुछ तो वर्किंग आउट वाले भी होंगे, तुम्हारे बेटा आवाज, हाँ तो कुछ वर्किंग वाले भी होंगे, है ना। तो जो वर्किंग वाले क्वेश्चंस है दैट वुड बी एक्सपेक्टेड कि तुम वो सारे वर्किंग दिखाओ, ठीक है। एक फाइनल ये ध्यान रखना रूल इज दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां पे भी करो, या तो एकदम सेकंड पेज पे करो, सेकंड और थर्ड जितना जरूरत पड़े, या तो एकदम लास्ट में करो, दैट चॉइस इज योर्स। बट जहां पे भी करो एक साथ करना, ये मत करना कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, 4-5 ऑब्जेक्टिव डाल दिया बीच में, फिर दूसरा सब्जेक्टिव किया, फिर 2-3 ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर तीसरा सब्जेक्टिव किया, फिर 4-5 ऑब्जेक्टिव आ गया। इसमें एक दिक्कत है दैट इट माइट रन ए रिस्क कि तुम्हारा एक आध क्वेश्चन का चेकिंग ही ना हो, क्योंकि नजर ही नहीं आया वो बीच में, पता ही नहीं चलता। कई बार हम लोग हैंडराइटिंग भी तो वैसे ही करते हैं एग्जाम में, जल्दी में। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, बट द थिंग इज दैट हाउ विल द पर्सन नो, है या नहीं। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन जरूर याद रखना इज दैट ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट in one place। Now that place could be either the second and third page, that could be there, या तो एकदम लास्ट में। फर्स्ट पेज लेकिन ध्यान रखना नेम, रोल नंबर एंड ऑल द ऑब्जेक्टिव, बस सिर्फ फर्स्ट पेज इसी के लिए रखना और किसी चीज के लिए नहीं। अब सब्जेक्टिव को तुम या तो सेकंड थर्ड पेज कर लो, उसके बाद वर्किंग पेजेस, या तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वर्किंग पेजेस कर लो और लास्ट में सब्जेक्टिव कर लो, दैट चॉइस इज देयर। बट वो खिचड़ी मत पकाना कि एक आधा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये मत करना, बार बार रिमाइंडर दे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करोगे, एज आई सेड जो लास्ट 5 मिनट्स होंगे ना, जब तुमको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि नाउ योर टाइम इज ओवर, तो प्लीज स्टार्ट क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स, ठीक है ना। शौर्य आज की क्या एमसीक्यू के वर्किंग भी लिखना इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो पेपर फिनिश करने में प्रॉब्लम होगी बेटे। मैंने पहले बोला वर्किंग डज नॉट मीन दैट यू टू शो स्टेप्स, वर्किंग मीन्स द रफ वर्क दैट यू आर डूइंग, द स्क्रिबलिंग दैट यू आर डूइंग, ठीक है ना। कई बार ना कुछ डाउटफुल चीजें हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये किया जा रहा है और कोई रीजन नहीं, ठीक है। हाँ तो जो मैं कर रहा था, ये जो 5 मिनट्स है, इन दैट 5 मिनट्स यू आर सपोज टू क्लिक द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल दीज पेजेस, जो भी पेजेस है, कन्वर्ट टू पीडीएफ एंड अपलोड। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, क्लिक पिक्स, ठीक है ना, क्लिक फोटोज ऑफ द पेजेस, ये सारे फोटोज ऑफ द पेजेस, देन कन्वर्ट टू पीडीएफ एंड देन अपलोड। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है एंड दैट डज नॉट टेक लेस देन 5 मिनट्स। ध्यान रखना ये 5 मिनट से कम नहीं लेता है, क्योंकि कई बार पीडीएफ कन्वर्ट करने में थोड़ा सा 1-2 मिनट लग जाता है और कई बार अपलोड करने में भी 1-2 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। हाँ अरिंजा आज की अगर मान लो कोई क्वेश्चन ओरली हो जाए तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वर्किंग भी दिखाना है ना। देखो कोई क्वेश्चन अगर ओरली हो जाता है तो वो मुझे भी पता रहे कि ओरली इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई लंबा सा क्वेश्चन है और तुमने कोई विदाउट वर्किंग अगर मान लो उसका आंसर डाल दे हो, तो इसका मतलब कहाँ से आया होगा आंसर थोड़ा लॉजिकली सोचो। देखो एक आध क्वेश्चन तुमने स्टेप जंप कर लिया, दैट इज वेरी अंडरस्टूड। और वैसे भी जो वर्किंग होगा वो पूरा सिस्टमेटिक नहीं करना है, वर्किंग मींस जस्ट स्क्रिबलिंग, जंप स्टेप्स, मोस्ट वेल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसके प्रेशर में बहुत अच्छे से लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एक्स,
and therefore velocity is equal to differentiation of x, इस तरीके से कोई जरूरत नहीं. Straight away differentiate, get the answer, या straight away integrate, get the answer, like that only. तो वर्किंग को लेके प्रेशर में मत आ प्लीज, ठीक है ना. यश दास की वेट टू अपलोड मेल और व्हाट्सएप, नहीं, ये गूगल में ही तुमको ऑप्शन है, यू हैव टू अपलोड विद इन गूगल ओनली. शाश्वत दास के फर्स्ट पेज में आपने जो एमसीक्यू लिखा है वो क्या, नहीं, फर्स्ट पेज में ऑल 20 क्वेश्चंस, 1 से लेके 20 क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए. उसमें सिंगल चॉइस भी, मल्टीपल चॉइस भी, सिर्फ ऑप्शन ही तो लिखना है. 1A 2B 3C, मान लो कोई इंटीजर है तो मान लो इंटीजर 79, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 इंटीजर का आंसर 79, 6 का 23, 7 का 4, समझ ले दैट. तो बस इतना ही लिखना है. तो ये तो बड़े आराम से एक पेज में आ जाता है. एक पेज में का आधे पेज भी जरूरत नहीं हो, है ना. तो फर्स्ट पेज में नेम, रोल नंबर एंड ऑल 20 क्वेश्चंस इन वन पेज का सिर्फ ऑप्शंस, वर्किंग नहीं, वर्किंग तो उसके बाद है. तो मेरा मान लो तो पता क्या है कि सेकेंड और थर्ड पेज को कर लो सब्जेक्टिव और उसके नीचे बाकी वर्किंग पेजेस रख लो. आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट. तो उससे कंफ्यूजन ही अवॉइड हो जाता है, फिर कोई डाउट भी नहीं रहता, है ना. चलो, आई थिंक दैट्स वेयर प्रोबेबली वी विल हैव टू पेटल द डिस्कशन हियर. वंश हैज आस्क्ड कि कैन वी टर्न ऑफ कैमरा व्हाइल क्लिकिंग फोटो. मैंने पहले ही बोल दिया कि एक डिवाइस दूर रहेगा, उस डिवाइस को तो शुरू से लेके एंड तक टच नहीं करना, ठीक है ना. सो दैट डिवाइस विल बी लिटिल अफार एंड दैट विल नॉट बी टच्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन मोड में ही रहेंगे. सो देयरफॉर वंश, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन इनडायरेक्ट, है ना. नवांश दास की पेपर किस पर होगा. पेपर बेटे तुम्हारे अपने ही व्हाइट शीट्स ले लेना, ठीक है ना, उसी पे होगा, ठीक है. सर रोल नंबर क्या है हमारा, वैसे वो नहीं पता. ओहो, अच्छा, रोल नंबर का एक इशू है ना. चलो नाम तो लिख ही लो. रोल नंबर का इशू अगर कल तक सॉर्टेड आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना. बट वैसे आगे से रोल नंबर होगा, बट क्योंकि अभी नया बैच है तो लाइक रोल नंबर शायद अभी एलोकेट नहीं किया होगा. दिस इज व्हाट माय गेस इज. तो कोई बात नहीं, नाम तो होगा ना, और सबका नाम यूनिक है. कई बार कुछ बैचेस में तो एक ही नाम के 2-3 बच्चे भी हो जाते, तो वहां दिक्कत आता है, बट फॉर्चुनेटली तुम लोगों का नहीं. ठीक है ना. ध्रुव दास की पेपर किस पर होगा वो तो मैंने बता दिया. वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑन सेम पेज, मैंने बार बार बोला बेटे नवांश नो, the objective answer is in the first page, working बाकी पेजेस, ठीक है ना. अब मान लो वर्किंग में तुमने 5-6 पेज लगाया, तो जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है तो फर्स्ट पेज में उसका आंसर चॉइस लिख लो और उसका वर्किंग दिखा दो, सिंपल, ठीक है. तो आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड. सर जो हमारा दूसरा कैमरा होगा सर, उसमें बस चेहरा ही तो दिखना चाहिए ना. चेहरा नहीं, वर्किंग एरिया. अब चेहरा इतना सा दिखा दिया, अब वो चेहरा कहाँ देख रहा है, गूगल में देख रहा है या कहाँ देख रहा है, कैसे पता चले. ओके सर. ठीक है ना. आई थिंक सी, एक चीज ईमानदारी से बताओ, क्या इस क्वेश्चन का जवाब तुमको नहीं पता था? पता तो हो गई. ओके, ध्रुव दास की किस ऐप पर. ऐप नहीं बेटे, गूगल क्लासरूम. आई डोंट थिंक इट्स एन ऐप, आई मीन स्पेसिफिकली, या शायद इसका ऐप भी होता होगा, आई डोंट नो. गूगल क्लासरूम मतलब यू जस्ट एंटर गूगल क्लासरूम विथ योर ऑफिशियल मेल आईडी. हाँ, एक चीज और भूल गया बताना, ये इधर उधर के मेल आईडी पे अगर जाओगे तो एक्सेस डिनाई कर देता है. तो यू हैव टू एंटर बाय यूजिंग योर ऑफिशियल मेल आईडी जो तुमको दिया गया स्कूल के तरफ से. आई थिंक सबको एक मेल आईडी प्रोवाइड किया गया ना, तो उसी को ही यूज करके लॉगिन करना है. कोई दूसरे मेल आईडी से लॉगिन करोगे तो देखना वो मना कर देंगे. तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना. ध्रुव गोयल सेठ कि मेरे आईडी काम नहीं कर रहा. मैंने रवि सर को तो बोला था. बेटे प्लीज गेट इन कांटेक्ट विद रवि सर टुडे इटसेल्फ आफ्टर द क्लासेस. इस चीज को आज सॉर्ट आउट कर लो, नहीं तो फिर कल एंट्री नहीं मिल पाएंगे, तो ध्यान रखना. ओके, और कुछ रह गया, कोई क्वेश्चन? नवांश दास की वर्किंग पेज 1 में रख सकते हैं ना. पेज 1 में सिर्फ आंसर चॉइसेस. भूमिका सेट की आई गेस वी आर नॉट गिवन रोल नंबर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट नाम तो रखो. वंश दास की कहने तो आंसर कर दिया मैंने. वंश आल्सो आज की क्या एग्जाम गूगल फॉर्म्स में होंगे. हाँ, ऐसे कुछ है, मतलब ठीक है ना, गूगल फॉर्म्स ही कहते हैं शायद. फिर तो 3 डिवाइसेस का जरूरत पड़ेगा. नहीं, 2 ही ठीक है. नहीं, 2 ही ठीक है ना, क्योंकि एक तो थोड़ा सा दूर रहेगा
which is for invigilation and observation, और एक होगा तुम्हारा जो है एक हो जाएगा तुम्हारा वो क्या बोलते हैं जिसमें क्लासरूम है, और उसी को यूज करके बाद में फोटो खींच के अपलोड करना, इसलिए दो ही काफी। Jaslyn asks, can we use the same device for joining the meet and set seeing the question paper? Well, देखो उसमें दिक्कत क्या आ जाता है ना कि जब तुम शफलिंग करते हो ना इधर उधर, तो शायद वीडियो गायब हो जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम से ठीक है ना, इसलिए शायद अलाउ नहीं करते हैं। ठीक तो है, एक डिवाइस क्या दूर मतलब टेबल पे ही रख देना। हाँ एक डिवाइस दूर रखना मतलब टेबल पे रख देना। हाँ, एक डिवाइस थोड़ा सा दूर रखना सो दैट टेबल और पर्सन विजिबल, बस यही है ना। एक लास्ट में चीज और कहना चाहूंगा, और ये लास्ट ईयर नहीं, मतलब खैर मैं तो खैर काफी साल से कर रहा हूँ, बट लास्ट ईयर भी इसको किया था। मतलब ऑफलाइन में तो अच्छे से हो जाता है क्योंकि ऑफलाइन में तो चीजें कंट्रोल में होता है, ऑनलाइन में क्या है कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड आल्सो टू चेक एंड वेरीफाई लॉट ऑफ थिंग्स। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम लोग करो और इस चीज को सीरियसली करो, और यू नो इंटरेस्ट लेके करो। आई थिंक इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। विश्वास आज के लैपटॉप में तो सेम डिवाइस में मीटिंग और पेपर खुल जाता है। चलो ठीक है, दीज आर सम मॉडिफिकेशंस, वी विल सी दैट। अर्शिता आस्क्ड कि आई कुड नॉट जॉइन टिल 8:15, तो क्या हुआ अभी तक, रिपीट कर दीजिए। नहीं, रिपीट तो नहीं करूंगा, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैं बाद में भेज दूंगा व्हेन यू यू नो सेंड मी द मैसेज। अच्छा सुनो, जो सेकंड थिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो चलो एग्जाम है, एक बार कल हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगा, तो लाइक आई थिंक यू कैन मैनेज। तो तुम लोग काफी टेक सेवी हो, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ मेजर थिंग, और अगर कुछ माइनर इधर उधर होगा तो वी विल सॉर्ट इट। जो सेकंड पार्ट है वो आप अच्छे से सुनो, एक दिन याद करके देखो। मैंने डिस्कशन किया था इज दैट कई बार ना हम लोग अपने आप को ट्रैक नहीं करते हैं, और जिसके वजह से प्रिपरेशन का जो हाई गियर प्रिपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कई बार वो हो नहीं पाता। नॉट एग्जैक्टली टू ब्लेम योर इट, इट इज जस्ट दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो ये हो जाता है। एंड देयरफॉर अपना सेल्फ ट्रैकिंग अगर रखते हो, जैसे कहते हैं ना रेडी रेकनर टाइप का, तो उस तरीके से सेल्फ ट्रैकिंग अगर एक मैकेनिज्म हो, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज हेल्प्स। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आज आज जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो एक पेज में एक सर्टेन फॉर्मेट बनाना, और एवरी संडे इसको फिलअप करना है, और एंड सेंड इट टू मी एंड आई विल टेल यू द फॉर्मेट। फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, फॉर्मेट इज लाइक दिस। ये मैंने लास्ट ईयर भी बनवाया था, तो यू नो मोस्टली लोगों ने किए थे, दो चार लोगों ने नहीं भी किए थे। आप देखो, यू कैन नॉट फोर्स इट, बट दोज हु हैड डन हैड आल्सो लेटर ऑन सेड कि हाँ इससे बेनिफिट तो हुआ। अब ये देखो, ये है इसका, जैसे एक सिंगल पेज ले लो, A4 शीट होता है, तो मे बी यू कैन जस्ट यू नो टेक एन A4 शीट and just stick it on the table, wall, जहां पे भी पढ़ते हो मतलब रेगुलरली, तो उसके वॉल पे या टेबल के जो साइड वॉल होता है जहां पे भी रखना है, या इवन अगर मान लो तुम्हारे पास टेबल में ग्लास है तो ग्लास के और टेबल के बीच में रख लो, दैट्स अप टू यू। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज हाउ यू शुड डू इट, बट क्या करना है वो मैं बताऊं। देखो, वेरी सिंपल। जैसे ये वाला जो वीक है ये 20th को स्टार्ट होता है, आज 21st आई थिंक, है ना। तो ये वाला वीक शायद 20th या 22nd, हाँ 22nd, यानी ये वाला वीक जो है ना 21st से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यानी ये हो गया 21 to 27 6 जून का है। ऑन 27 फिल अप दिस चार्ट, ऑन 27 फिल अप दिस चार्ट। उसमें कोई यू नो टाइम नहीं लगता। यू विल वेरी वेल रिमेंबर कि इस एक हफ्ते में तुमने क्या क्या सोर्सेस और क्या क्या चीजें सॉल्व किया था। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। जैसे मान लो सपोज तुमने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए थे 70, जस्ट लिख लो, ज्यादा किया तो ज्यादा लिख लो, बट डू इट इन ऑनेस्टली, क्योंकि ये तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर, अपने लिए कर रहे हो, ध्यान रखो। मान लो केमिस्ट्री में तुम किया 90 क्वेश्चन, यू विल नो वेरी वेल, और अगर याद नहीं है तो एक बार याद कर लो। अच्छा मैंने एचसीबी का 50 क्वेश्चंस कर लिया है, बीएम शर्मा का 40 क्वेश्चंस कर लिया, और फिर जी के पैकेज के 40 क्वेश्चन किया, तो 80 प्लस 40 प्लस 40 80 प्लस 50 130, बस हो गया। अब उसमें मान लो दो चार ऊपर नीचे तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखो 90 मैथ्स में लेट्स से यू हैव डन 120, इसको लिख। अब मैं बता दूं इसका यूज कैसे करना है। देखो याद करके देखो, मैंने एक वीकली टारगेट दिया, वीकली टारगेट इज फिजिक्स 100 per week, chemistry 100 per week,
मैथ्स में मिनिमम 150, आइडियली 200 हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो 200 per week. Now this is what should be the ideal target. I'm talking about good questions obviously. गुड क्वेश्चंस में बेसिक्स भी आता है, जिसमें जैसे फिजिक्स में बेसिक्स बोलते हैं हम एचसी वर्मा मान रहे हैं, और उससे थोड़ा सा एडवांस हो गया तुम्हारा बीएम शर्मा एंड डीसी पांडे या कोटा क्वेश्चन बैंक, जिसके पास जो है, और कईयों के पास फिटजी मॉड्यूल या कुछ नारायणा का, या किसी के पास आकाश का, किसी के पास वीएमसी का मॉड्यूल है, तो जो भी है, आई एम नॉट डिनाइंग एक्सेस टू एनी ऑफ दिस, आई एम ओनली सेइंग व्हाटएवर योर वर्किंग क्वेश्चंस आर, ऐड देम अप एंड जस्ट राइट देम डाउन। अब इसको यूज कैसे करोगे वो समझो। देखो मैंने टारगेट दिया 100, है ना, लेट्स से थोड़ा सा मैथ्स में अच्छा कर लिया था, लेट्स से 190। अब मैंने टारगेट दिया 100 क्वेश्चंस पर वीक फॉर फिजिक्स, तुमने कितना किया 70। यानी एक चीज दिमाग में रखो, दिस वाज अ वीक व्हिच हैड फिजिक्स डेफिशिएंसी ऑफ 30 क्वेश्चंस, यानी तुम्हारे नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या होना चाहिए 130। ये थोड़ा ध्यान रखो, समझे ना, नेक्स्ट वीक का टारगेट है 130 क्वेश्चंस। तो एक काम करो, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लो, एक है टारगेट, तो इसको लिख लो यहाँ पे 130, और फिर उस वीक में एंड में एनालाइज करो कितने क्वेश्चंस। मान लो तुमने कर लिया 120, यानी देख रहे हो अभी भी 10 का डेफिसिट है, 10 का डेफिसिट है, तो वो अगले वीक में जो है 10 का ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा 110। ठीक है, यानी अब एक काम करो, ऐसे केमिस्ट्री में 2 कॉलम और एक मैथ्स में 2 कॉलम, ये बनाओ, और एवरी वीक अगले वीक का डेडलाइन भी सेट करो, टारगेट डेडलाइन, और उसको कितना फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका भी ट्रैक करो। एंड आई विल टेल यू वेयर आई एम इनटू द पिक्चर। देखो मैं कोई छड़ी घुमाने वाला तो हूं नहीं, देखा होगा मेरा नेचर तो ऐसे कुछ है नहीं, यू मस्ट हैव सीन हिम। तो मैं जो चाहता हूं वो समझो, इज दैट कि अगर तुम इसका पिक मुझे भेजते हो तो उसका बेनिफिट समझो, यू विल बी अंडर अ लिटिल बिट ऑफ मॉरल प्रेशर। तुम अगर इसको खुद अकेले करते हो ना, तो मान लो तुम 2-3 हफ्ते से सपोज टारगेट को फॉल्टर कर रहे हो, लेट्स से मैं चाहता नहीं हूं कैसे करो, बट लेट्स से हो जाता है, तो यू आर नॉट रियली सो बाउंड, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, दुनिया का थोड़ी पता है, मुझे पता है। तो कई बार ना मेंटली रिलैक्सेशन को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी को नॉर्म बनाते हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि याद रखना एवरी वीक तुमसे कोई ना कोई फिर आगे चला जाएगा, और वो आज नहीं पता चलेगा, वो जाके जब पता चलेगा ना तब तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज कर सकते, है ना। अच्छा, इसको अगर भेजते हो तो आई विल आल्सो कीप इट ट्रैक, मुझे भी दिख जाएगा। तो मान लो अगर कभी कुछ थोड़ा सा डाउन जा रहा है एंड ऑल, एटलीस्ट आई विल आल्सो ट्राई टू इंटरवीन एंड चिप इन एंड सी हाउ मे बी यू कैन बी मोटिवेटेड टू फॉलो द टारगेट। तो मैं इसलिए पिक्चर में रहना चाहता हूँ, जस्ट लिटिल डिस्टेंस, और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि एवरी वीक मैं कमेंट करूंगा कि हाँ भाई क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं। आई ऑल्सो नो कि ऊपर नीचे चलता रहता है, तैयारी है, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। तो मैराथन में कुछ स्ट्रेच में कोई आगे पीछे हो जाता है, बट वो एंड के डैश भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पता है ये सब। तो देखो प्लीज सेंड द पिक ऑफ दिस एवरी संडे। आज ट्यूसडे है, तो मैं चाहूंगा कि इस संडे से एवरीबॉडी प्लीज सेंड ए पिक ऑफ दैट, तो एक वीकली आदत बन जाएगा। यू विल ऑल्सो बी अंडर सम काइंड ऑफ मॉरल प्रेशर कि नहीं मुझे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। खुद से ना कई बार वो प्रेशर बन नहीं पाता, बट देन व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद समबडी एक्सटर्नल, तो देखना उससे चीजें मॉरल प्रेशर बनाना बिकम्स अ लिटिल बिट इजी। तो आई ऑल्सो विश कि ये एवरी संडे करो, तो देखना, सी आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, यू आर ओनली सॉल्विंग इट, बट वो जो ट्रैकिंग कर रहे हो ना, उसका बेनिफिट क्या होता है वो एक हफ्ते में रियलाइज नहीं करोगे, 3-4 हफ्ते जब हो जाएगा ना, तुमको खुद को लगने लगेगा नहीं यार इसका फायदा तो हो, इट्स जस्ट अ 5 मिनट एक्सरसाइज, बट समवेयर वो 5 मिनट ना तुम्हारे पूरे वीक को थोड़ा करके देखना मोटिवेशन करता रहे। एंड दैट्स व्हाई आई वांट दिस टू बी डन वेरी सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड रेगुलरली। ठीक है, चलो आई थिंक वी हैव स्पेंट एनफ टाइम। तो ये समझ में आएगा ना मैंने क्या लिखा है। वीक का डेट डाल दो, जैसे 21 से 27 हो गया, तो अगले वीक हो जाएगा 28 से, फिर वो 7 आ जाएगा, मतलब जुलाई हो जाएगा। और फिजिक्स के अंदर 2 कॉलम, केमिस्ट्री के अंदर 2 कॉलम, मैथ्स के अंदर 2 कॉलम। तो फर्स्ट वीक में तो इसको 100 डाल दो, इसको भी 100 डाल दो, इसको 200 डाल दो। ठीक है, फर्स्ट वीक के लिए 100, 100, 200, और जितना हो पाता है वो लिख लो साइड। अब इस वीक में जो डेफिशिएंसी होगा, मान लो तुमने 80 किया, मान लो फिजिक्स में 80 किया, यानी अगले वीक में फिर क्या हो गया 120 हो जाए, कि भाई 20 डेफिशिएंसी है, तो कोशिश करो उसको मेकअप करने का, एंड सो
बस ठीक है. चलो आई थिंक आई होप यू स्टार्ट इट अर्नेस्टली. यहाँ पे मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रोएक्टिव बन जाओ. आई थिंक दैट विल हेल्प यू लॉट. फाइन. और देखो मैं कोई रोकने टोकने वाला नहीं हूँ, इसलिए डोंट वरी कि नहीं अगर मान लो कम हो जाएगा तो सर आप कुछ वो करोगे, ऐसे कुछ. आई विल ऑब्जर्व फॉर 2-3 वीक्स. अगर 2-3 वीक्स में कंटिन्यूअसली कुछ दिक्कत हो रहा है तो मे बी एट दैट टाइम आई माइट पर्सनली, वो भी पब्लिकली नहीं, डोंट वरी, पर्सनली आई माइट कम्युनिकेट कि बच्चे क्या हो रहा है ना, तो लाइक फ्यू वर्ड्स. ठीक है. ओके, आई थिंक वी वर डूइंग प्रोजेक्टाइल. so I think let's start or rather continue with that. ठीक है. The first question on projectile is based on an infinite projectile. कैसे? Now let us say एक है ideal collision. Let us say मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया 50 मीटर पर सेकेंड से at 53 डिग्री. ठीक है. You have to find out the coordinates of the projectile. Now this is an ideal case. Ideal case और नॉन आइडियल केस में फर्क क्या है? आइडियल केस में पता है क्या होगा? ऐसे ऐसे फॉर एवर चलता रहेगा. दिस इज फॉर एन आइडियल केस. ध्यान रखना. ऐसे आइडियल केस में फाइंड कोऑर्डिनेट्स आफ्टर 79 सेकेंड्स. ये सारे बाउंसिंग्स याद रखना आइडियल है, मतलब विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी, व्हाटएवर यू कैन से. जनरली देखो कि असली में क्या होता है कि असली में तो ऐसे होगा ना कि असली में क्या होगा? असली में तो देखो ऐसे होगा. दिस इज अ रियल लाइफ काइंड ऑफ, बट दिस इज फॉर आइडियल. तो हम अभी फिलहाल आइडियल केस में 79 सेकेंड्स के बाद इस प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट्स पूछा. गो अहेड. सर साइड 50 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री, 79 सेकेंड्स. ये तीनों डेटा नोट कर लो. Okay, let me maybe start communicating also. Otherwise, silently अच्छा नहीं लगता है. Okay, Akshita, can you tell me your solution planning? Akshita, solution planning means what are you planning to do? Akshita, can I have you on here? Yeah. So first, we'll take the time period. थोड़ा सा तेज बेटे. हाँ बोलो. सर परसेंटेज ऑपरेटर में दे दे, मतलब No. एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए था. बट एनीवे अभी अक्षिता बताओ जरा क्या बोल रहे थे. So जैसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट. यस सर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे. फिर उसके बाद इसका जो भी फैक्टर होगा, तो जैसे कि उसको डिवाइड कर देंगे. फिर उन सेकेंड्स के बाद जितना भी उसने आगे डिस्टेंस कवर किया होगा उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. नहीं ये थोड़ा सा अच्छा. अशिता इज आल्सो अच्छा. नहीं वो तो कुछ और कमेंट. ओके अशिता, यू आर सेइंग कि अगले 2 हफ्ते से तो पूरे दिन फिटजी के क्लासेस भी है, तो कैसे मैनेज करेंगे इतने क्वेश्चंस. देखो अशिता, इन दैट केस एक काम करो, 100 का टारगेट मत रखो. टारगेट थोड़ा कम कर लो. मे बी कीप अ टारगेट ऑफ 70.
60 if you are feeling so much of pressure, वो तो एक आध हफ्ता चलेगा, डोंट वरी। ये कोई मिलिट्री रूल नहीं है। यू आर सपोज टू पुट योर टारगेट। अगर मान लो, अच्छा एक चीज बताओ, सपोज तुम्हारे बाई चांस फैमिली वेकेशन में जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, तो क्या तुम 100 क्वेश्चंस पर वीक रखोगे? नो, क्योंकि तुमने एस्टिमेट कर लिया कि 4 दिन तो वेकेशन है, 3 दिन मेरे पास टाइम है, तो ठीक है इस बार 40 क्वेश्चंस का टारगेट, फाइन। कोई मिलिट्री रूल नहीं है बाबा, चिंता मत कर। अच्छा, anyway, I started getting answers and Akshita, what you are saying is correct. Last के थोड़ा सा statement मुझे weak लगा, but I think what idea you were saying was definitely correct. I mean, no doubt about that. ठीक है ना? चलो, तो let's start. First of all, time of flight, है ना? बिल्कुल सही बात है, time of flight का तो जरूरत है ही है. And I have started getting answers through Akshat, Vansh, Utkarsh, Navansh, Shashwat. एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो सबका सेम आया ना। ध्रुव, तुम्हारे एक्स कोऑर्डिनेट गड़बड़ है बेटे, ठीक कर लो। आई थिंक यू मेड अ सिली मिस्टेक, दिस व्हाट आई फील। वाई कोऑर्डिनेट भी सबके थोड़े थोड़े अलग है, ज्यादातर सेम है। आर्यन के और अक्षत के थोड़ा सा अलग है, बाकियों का तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, गुड। यानी देखो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज है नहीं, और इसका अगर तुम वो देखोगे तो यानी ये 30 हो गया और ये हो गया 40, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, है ना भाई? क्या बोलते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, तो यानी u by g यानी 4, वापसी में 4, तो 8 सेकेंड्स का तो हो गया। यानी 79 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, उसका रिमाइंडर, सो व्हाट आई नीड इज रिमाइंडर of 79 when divided by 8 which is equal to 7, ठीक है ना? 7 सेकेंड। अच्छा, 7 सेकेंड बाद जो हाइट होता है वो सेम होगा एज 1 सेकेंड, क्योंकि ऊपर जाना और नीचे जाना बड़ा सिमेट्रिकल है। तो 1 सेकेंड बाद जितना हाइट होगा 7 सेकेंड बाद भी उतना ही हाइट होगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री टाइप का, मतलब 1 सेकेंड बाद हाइट, 7 सेकेंड बाद हाइट सेम होगा, 2 सेकेंड बाद हाइट, 6 सेकेंड बाद हाइट सेम होगा, एंड सो ऑन। और 1 सेकेंड के बाद हाइट निकालना तो बहुत आसान है ना? कैसे ना, देखो अभी अगर 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज कितना हो गया 35, तो इसके हाइट तो आ गया 35, देयरफॉर हाइट आ गया इक्वल टू 35। और x कितना हो जाएगा 30 into 79, क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही जाएगा, तो 79 into 30, यानी आंसर क्या आ गया 79 into 30, 35। बिल्कुल सही बात है, वेरी राइट। चलो ठीक है, ये तो हो गया आइडियल केस। अब मैं इसको नॉन आइडियल करना चाहता हूँ। ओके ठीक है, शीर्ष, ग्राफ में जनरल इक्वेशन लिख दो। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। इशिता, थोड़ा सा एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ गड़बड़ सा है, एक बार ठीक कर लो इसको बेटे। वाई कोऑर्डिनेट इज राइट, युग तुम्हारे तो दोनों ही सही है। ठीक है, अरहान, अक्षत, अक्षत ने भी अब करेक्ट कर लिया, हाँ अक्षत ने करेक्ट कर लिए, आर्यन वगैरह, आई थिंक ऑल आर राइट, फाइन। चलो गुड जॉब, देयर वर मेनी करेक्ट आंसर्स इन फैक्ट। अब एक काम करते हैं, अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो क्या होगा, है ना? तो देखो जनरलाइज अगर करते हो तो इन दैट केस एक रिमाइंडर फंक्शन सी, तो हम एक काम करेंगे, डेल्टा टी डिफाइन करेंगे विच इज द रिमाइंडर फंक्शन ऑफ ये जो टी दिया हुआ है अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बड़ा क्रिटिकल। उसके बाद क्या होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी u cos थीटा इनटू t, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा u sin थीटा इनटू डेल्टा t माइनस हाफ g डेल्टा t स्क्वायर। तो ये इसका जनरलाइज चीज होगा। यहाँ पे एक डेल्टा t डिफाइन करना पड़ता। डेल्टा t है क्या बाय द वे? डेल्टा t इज द डिफरेंस, ठीक है ना? डेल्टा t इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, डेल्टा t इज द रिमाइंडर ऑफ टाइम t, जितने टाइम बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अपॉन कैपिटल टाइम t। कैपिटल टाइम t इज ऑफ कोर्स 2u sin थीटा बाय g। चलो ये तो हो गया आइडियल केस। आई थिंक दैट वुड बी द वे टू पुट इट। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और ये हो गया डेल्टा t का कैलकुलेशन। लेकिन अब हमारा टारगेट होगा कि अगर मान लो नॉन आइडियल बाउंसिंग होता तो क्या होगा। नॉन आइडियल मींस दिस काइंड, है ना? ओके, ऐसे में पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इसी केस में मैं एक काम करता हूं। सपोज मैं कहता हूं दैट
I'm defining a parameter called as E. इस bouncing में I'm defining a parameter called as E. E क्या है? E is called as coefficient of restitution. अब ये word का जो spelling है इसका सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता हो. So those who are aware and familiar would know what is the meaning of it. But those who are not familiar might find out a little funny कि क्या आपने word use कर लिया. तो देखो इसका मतलब होता है coefficient of restitution. Restitution का मतलब क्या होता है? It is relative velocity after collision upon relative velocity before collision. इसमें mod लगा दो so that E becomes positive हमें. Otherwise relative में क्या होता है ना, आना और जाने के बीच में फिर प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है. सपोज इस क्वेश्चन में मैं दे देता हूं E is equal to half, ठीक है ना, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं. नंबर 1, what is the total time of flight, total range till projectile motion ends, and maybe ये ना E का जरा वो नोट कर लो, ठीक है ना. प्लीज नोट फॉर E I mean. So ये ठीक है, magnitude सर ये होता है. सेम क्वेश्चन में निकालना है क्या हमें? हाँ बेटे, सर सेम क्वेश्चन में निकालना है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है. 50 मीटर पर सेकेंड 30 और 40 हो जाएगा, एंगल 53 डिग्री है, एंड इट्स ए इनफाइनाइट प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, ठीक है. ना हमें ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है. हाँ, वेलोसिटी का वैल्यू इस बार बदल रहा है क्योंकि E का वैल्यू मैंने हाफ दिया. अच्छा, E का वैल्यू हाफ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज स्ट्राइक किया 100 पे, तो वापसी होगा 50 पे. E का वैल्यू हाफ का यही मतलब है. अगर 100 पे स्ट्राइक किया तो वापस 50, फिर अगले बार 50 पे स्ट्राइक किया वापस 25, अगले बार 25 पे स्ट्राइक किया वापस 12.5, अगले बार फिर 6.25. तो एवरी टाइम आफ्टर स्ट्राइकिंग द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग. तो तभी मैंने इसका फिगर ऐसे बनाया था ना, इस तरीके. तो क्वेश्चन इज इनफाइनाइट बाउंसेस के बाद क्या होगा. अच्छा, यहां पे एक सवाल और भी है, इज दैट क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन इंफिनिटी तक जाएगा? यस और नो? इंफिनिटी तक, क्योंकि बाउंस तो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. तो क्या ये इंफिनिटी तक जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन? Sir. Okay, Lavanya says no, Utkarsh says no, Aviral says no. सर ऐसा आपने पहले भी कराया था. हाँ, मतलब ये यानी क्या हो रहा है? Adit also says no, but infinite number of bounces. यानी बाउंसेस का नंबर इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल का जो ड्यूरेशन है और प्रोजेक्टाइल का जो लेंथ है वो दोनों ही फाइनाइट होगा. यानी ये वाला चीज इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, ये यहाँ तक कहीं तक करके ये यहाँ पे एंड हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, और उसके बाद क्या होगा, ये सिर्फ घसीटते हुए चला जाएगा, ठीक है ना, घसीटते हुए चला जाएगा. That's what is going to happen. सर इसमें जो 30 मीटर सेकंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उस नहीं, डायरेक्शन वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब बाउंसिंग होता है ना, तो बाउंसिंग इज बेसिकली अ फिनोमेना व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो अगर ये सरफेस है, थोड़ा समझो, अगर ये मान लो सरफेस है, तो बाउंसिंग वाला जो वेलोसिटी है, y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है, उसी में हाफ 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 होता जाएगा. जो x कंपोनेंट का वेलोसिटी 30 है, इसमें नो चेंज. तो फर्स्ट थिंग इज दैट this does not have any change. ठीक है, तो मैंने इस केस में कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन हाफ दिया है, कुछ भी हो सकता है, बट इस केस में हाफ दिया है. तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा ना, पहला वाला कितना है 8, अगला 4 2 1 हाफ 0.25 एंड सो ऑन. यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इक्वल टू 8 by 1 minus half, and that is 16 seconds. और प्रोजेक्टाइल कहां से कहां तक चलेगा? Total R till with the projectile ends क्या होगा? R will be equal to 16 into 30, यानी 480 meters. ठीक है, Vansh, Arhan have given the answer for both of them. ने Vansh सिर्फ टाइम का आंसर दिया है. That's right.
ठीक, you are correct, very correct. Now Dhruv Shandila has also given the answer. अच्छा, अब अगर मान लो सपोज मैं पूछता हूं कोऑर्डिनेट्स, सपोज मैं पूछता हूं इस बार कोऑर्डिनेट्स आफ्टर 13 seconds. Find out the coordinates after 13 Sir, seconds. ये हमने रेंज कैसे निकाली सर? वो भी मतलब जीपी से ही निकाले? नहीं, रेंज तो हमने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं. हमने देखा कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल 16 सेकंड और 16 सेकंड के दौरान एक्स के वेलोसिटी कभी बदला ही नहीं, है ना? तो एक्स का वेलोसिटी 30 और 16 सेकंड तक प्रोजेक्टाइल का ड्यूरेशन है 16 into 30, दैट्स इट. रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है. बट इस क्वेश्चन को थोड़ा जनरलाइज करूंगा मैं, अभी थोड़ा देर बात करूंगा. बस एक पहले ये निकालना, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स आफ्टर 13 seconds. क्विकली डू इट. तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, 390 है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो मैं पहले ही लिख देता हूं. बस मुझे वाई कोऑर्डिनेट बता दो. Yes, y coordinate. Y coordinate we have already got. Y coordinate we have got. Y coordinate we have got from Adit, and that is 5. Utkarsh has given 5. Now Vansh has also given 5. I think that's a pretty good job. नहीं देखो, पहली बात तो 8 सेकंड लगा पहले का, फिर 4 सेकंड लगा, 12 सेकंड हो गया, 13 सेकंड, यानी 1 सेकंड वाला चाहिए. पर क्योंकि हर बार वेलोसिटी बदल रहा है तो क्या हो गया 40, फिर इसका इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स vy, इसका इनिशियल हो गया 40, इसका होगा 20, तो इसका होगा 10. ये uy कह लो. चलो, यानी y के अलोंग वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या क्या आएगा 40, 20, 10, है ना? तो देयरफॉर 10 वाला वेलोसिटी के बाद 1 सेकंड का ड्यूरेशन आ रहा है, तो उसके लिए फिर वही टेक्निक यूज कर लो. तो या तो u स्क्वायर बाय 2g से कर लो, है ना? यू कैन डू दैट. u स्क्वायर बाय 2g, तो 10 स्क्वायर बाय 2g दैट इज इक्वल टू 5 मीटर. और नहीं तो जो मैंने बताया था इज दैट इनिशियल 10 हो गया, है ना? इनिशियल 10 हो गया और 1 सेकंड बाद क्या होगा 0, तो 10 and 0, so what is the average 5, so therefore 5 meter will be the height. ठीक है ना? तो बिल्कुल सही है, 390, 5 is the correct answer. Excuse me, sir. एक सेकंड रुकोगे, एक सेकंड रुकोगे. शाश्वत थोड़ा सा आंसर चेक कर लो. आई थिंक बाकी सबके सही आ रहा है. आधार, ध्रुव, वंश, एवरीबॉडी इज करेक्ट. हाँ बेटे क्या बोल रहे थे? सर आपने इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा देखो, पहली बात 40 है, तो 2u/g कितना हो गया 8. अगले बार वेलोसिटी 20 है, तो 2u/g कितना हो गया 4. अगले बार वेलोसिटी 10 है, तो 2u/g कितना हो गया 2. आई थिंक नाउ यू कैन एड इट योरसेल्फ. तो इनफाइनाइट जीपी होगा, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा हाफ, तो a by 1 minus r, तो a by 1 minus r that is equal to 16 seconds. तो वो जो 16 सेकंड है उसमें तो चलता रहेगा ना प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना? तो इसलिए इनफाइनाइट जब खत्म होगा, यानी ऐसे करके जो भी होगा, ये हो गया 480 मीटर. वो 16 सेकंड और 30 का हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो 480 मीटर पे प्रोजेक्टाइल खत्म होगा. खैर मैंने तो कुछ स्पेसिफिक टाइम पे पूछा है, 13 सेकंड्स. तो 13 सेकंड्स में तीसरा प्रोजेक्टाइल चल रहा है 8 सेकंड, 4 सेकंड और तीसरे प्रोजेक्टाइल के 1 सेकंड के बाद. तो आई थिंक उसका वेलोसिटी हमने यूज करके हाइट वगैरह निकाल लिया. सर मेरे को एक डाउट सर, इसमें सर जैसे हम रेंज निकालते हैं सर, जो 8 सेकंड वाला है सर उसकी रेंज अलग होगी, 4 सेकंड वाले की अलग होगी सर. देखो तुम उस तरीके से करना चाहते हो ना, चलो ठीक है, उससे भी मैं करके दिखा देता हूं, बट देन दैट विल बी लॉन्गर. देखो 8 सेकंड वाले पे रेंज कितना होगा बताओ जरा. 8 सेकंड वाले का रेंज कितना होगा सर 240 मीटर. 240. अगले वाले का रेंज क्या होगा सर 120.
30 into 4. देखो इसका अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड होता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 तो 8 into 30 हो गया। अगले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 4 सेकंड, तो यानी क्या होगा 120। उसका अगले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 1 सेकंड, उसका रेंज क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी उसके अगले का जो क्या बोलते हैं 2 सेकंड, उसका रेंज क्या होगा 60। उसके अगले का जो होगा देखना 1 सेकंड, यानी क्या होगा 30। तो ये ऐड करो तो कितना आ गया 240 by 1 minus half यानी 480। तो उससे भी तो आएगा, वही आंसर आएगा। लेकिन ये बताओ कि ये अप्रोच क्यों चाहते हो? देखो इसका फायदा उठाओ ना कि एक्स के अलग वेलोसिटी बदलता ही नहीं है, तो देयरफॉर ये बाउंसेस होते रहेंगे, कम 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 होते रहेंगे, लेकिन एक्स पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो एक्स वाला वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम हमने गिनती किया था कितना 16 सेकंड। वो तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, मैंने लिखा भी था तो मैंने हटा दिया। यस सर। सर इसमें जैसे एंगल भी नहीं बदलता ना, मतलब जैसे एंगल तो बदलेगा, बल्कि मेरे अगला क्वेश्चन इसी पे है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ। अभी हमने सॉर्ट आउट क्या किया, हमने टोटल रेंज निकाला, किसी एक टाइम पे प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट्स निकाला और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। और ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो ये थोड़ा अलग मीनिंग का है, मैं उस पे आ रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन अ लिटिल बिट, आई विल जस्ट कम। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा जनरल। अगला क्वेश्चन ये जनरल है कि लेट अस से अब मैंने क्या कर दिया, एक जनरल प्रोजेक्टाइल ले लो, यू नॉट एंड थीटा नॉट, एक जनरल प्रोजेक्टाइल। चलो यू और थीटा कर लो, ठीक है ना, u1 थीटा 1। नोटेशन का फायदा उठाना चाहता हूं क्योंकि 1 1 हो गया, फिर अगला u2 थीटा 2 इस तरीके से। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है e। अच्छा बाय द वे एक क्वेश्चन इशिता से आए हैं, दैट इज व्हाई डजंट द वेलोसिटी horizontal velocity change? Okay, can I throw this question to others? Can I throw this question to others also? कि horizontal velocity बदल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सर फोर्स से वर्टिकल डायरेक्शन में, वॉल हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग फोर्स ही नहीं लगाता। Okay, good answer. अब सुनो, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ। First of all, why is the velocity changing at all? Velocity is changing only because of one reason, and that is force. कौन सा force? ना ये जो पार्टिकल आके ये हिट कर रहा, तो उसको फोर्स लगा, फोर्स के चक्कर में आया ऐसे और फिर बाउंस बैक कर गया, यानी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स। एंड इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग? फोर्स इज गोइंग टू एक्ट परपेंडिकुलर टू द वॉल और सरफेस। इस बार सरफेस हॉरिजॉन्टल है और ये परपेंडिकुलर हुआ, यानी द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। माइंड यू वी आर टेकिंग आइडियल केस, तो आइडियल केस में सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसका वेलोसिटी बदलेगा। हॉरिजॉन्टल इस बार कोई फोर्स नहीं लग रहा। और अभी एक चीज और सुन के रखो, जब हम लोग डायनेमिक्स चैप्टर करेंगे तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स रखेंगे और देखना उस समय हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी चेंज होगा। सो यू माइट बी थिंकिंग ये कैसे होगा, बट दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ डायनेमिक्स, तो इसलिए मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूं। बट ये याद रखना कि जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये आइडियल केस हम लोग ले रहे हैं जहां पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, बट अगर मान लो कल को हॉरिजॉन्टल के में फोर्स होंगे, इन दैट केस हॉरिजॉन्टल में भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वेल लेट्स लीव इट टू पोस्टेरिटी। जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और खास करके फ्रिक्शन, तब देखना एक्स वाले वेलोसिटी भी बदलेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज ड्यूरिंग the ball hits the ground, I mean there is only one force and that is in the vertical direction, therefore there is no change in the horizontal direction. That's the discussion per se. चलो anyway, ये u1 और थीटा 1 है, अभी ये e है और ये बाउंस बैक कर रहा है ऐसे करते करते, तो nh प्रोजेक्टाइल का, so we are talking about now the nh प्रोजेक्टाइल। एक तो वो तो निकाल ही लो, t टोटल और r टोटल, चलो वो तो आराम से हो जाएगा, वो तो आई थिंक आराम से हो जाएगा, आई डोंट थिंक देयर इज मच। थर्ड देखो, nh प्रोजेक्टाइल का क्या क्या निकालना है, देखो tn hn, ठीक है, थीटा n एंड rn, ये चारों चीजें निकालो। One is also given, and that is there is no acceleration in the horizontal direction. ठीक है, I think I will accept that.
आई थिंक दैट्स अ प्रीटी लॉजिकल थिंग। इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो इसलिए होता है। अब जो है ना मैंने जनरलाइज कर दिया। फाइंड आउट दी स्पेसिफिकेशंस फॉर दी nth प्रोजेक्टाइल। अब nth प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं। ये u1 और θ1 है और ये बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। तो tn, hn, θn, rn, t टोटल r टोटल तो आई थिंक इजी जॉब है, वो तो कर ही लोगे। उत्कर्ष इस बार ना कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हाफ नहीं दिया मैंने, ई दिया। आई थिंक शायद तुमने हाफ लेके सॉल्व किया मुझे लगता है ना, Right. तो वो थोड़ा देख लेना ई ई ई के टर्म्स में कर। वैसे मुझे पता है कि इसको थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आता है बट चलो कोई नहीं, as best as you can. Okay, Aryan has given an answer and that is I think शायद पहले वाले का आंसर दे रहे हो। तो अगर पहले वाले का आंसर दे रहे हो शायद ये सही नहीं है। Aryan, can you just recheck once? सर वो सर एंगल को सर कॉस इनवर्स में नहीं बता सर, कॉस थीटा में ही बता दूं। हाँ हाँ ऑब्वियसली वो cos थीटा sin थीटा आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे। सबसे पहले एक काम करें, सिस्टमेटिकली चलते हैं एक एक करके। पहले टी टोटल निकाल, है ना। तो पहले वाले का कितना आएगा, 2u1 sin थीटा बाय जी। अगले इसको अगर मैं t1 मानता हूं तो अगला वाला क्या होगा, e t1, अगला हो जाएगा e स्क्वायर t1, अगला होगा e क्यूब t1 एंड सो ऑन। ये देखो ये t है, t1 है, तो t1 e t1 है ना, e स्क्वायर t1 और फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो देयरफॉर ऑब्वियसली e लेस देन 1 है, तो देयरफॉर यू विल गेट अ फाइनाइट टाइम एंड दैट इज इक्वल टू t1 यानी t फॉर टोटल, तो t1 by 1 minus यानी 2u1 sin थीटा 1 by g into 1 minus, ये तो आ गया टोटल टाइम। आई थिंक दैट्स अ प्रीटी रीजनेबल जॉब। और आर्यन सेज कि मैंने e को ना रेसिप्रोकल में ले ली, नहीं नहीं e का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ r टोटल, तो t टोटल आ चुका है, तो r टोटल के लिए क्या करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम। So therefore r total आ गया is equal to t total into u1 cos theta 1, यानी 2u1 sin theta 1 2u square I mean cos theta 1 by g into 1 minus। तो ये t total और r total I think that was a mere formality क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है तो उसी थीम में हो गया, तो there was not much into that, तो ये तो सिंपल हो गया है ना, t total and r total। चलो ठीक, अब असली चीज है ना, अब असली चीज है। देखो इस बार पता क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल में क्या चेंज आएगा ना, फर्स्ट में u1 sin थीटा 1, सेकंड में u1 इंटू मतलब e इंटू u1 sin थीटा 1, फिर अगले में e स्क्वायर u1 sin थीटा 1, फिर अगले में हो जाएगा e क्यूब u1 sin थीटा 1, यानी nth प्रोजेक्टाइल का है ना। अगर मैं nth प्रोजेक्टाइल देखता हूं, if I look at the nth प्रोजेक्टाइल तो क्या हो रहा है, देखो दूसरे वाले में e टू द पावर 1 है, तीसरे वाले में e टू द पावर 2 है, चौथे वाले में e टू द पावर 3 है, तो nth वाले में क्या होगा
e to the power n minus 1, ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी और ये तो सेम ही रहेगा, and u1 sin theta 1, that's it. तो इससे क्या होगा, tn आ जाएगा, फिर क्या चाहिए, tn होगा 2 into e to the power n minus 1 into u1 sin theta 1 by g. ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा hn, तो इसके लिए बस u1 cos theta 1 माइनस कर लो, ये हो गया tn hn, तो क्या होगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 into e to the power n minus 1 into u1 square sin theta 1 cos theta 1 by g. उसके बाद थीटा 1 थीटा n है ना, तो थीटा n क्या होगा, the tan inverse of these two, यानी e to the power n minus 1 tan theta 1, यानी tan inverse e to the power n minus 1, वो Rn लिख दिया ना आपने Hn की जगह, आपने RN लिख दिया HN में। Rn, this Rn है, ठीक है, हाँ Rn तो लास्ट, और Hn में क्या हो जाएगा ना, ये वाला वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, तो Hn हो जाएगा इसका, यानी e to the power 2 into n minus 1 into u1 square sin square theta 1 by 2g. I think we have now done. विश्वास has asked कि वो प्लीज tn एक बार दोबारा बता दीजिए। एक्चुअली पता क्या है, ये पूरा खेल एक ही जगह पे अटका हुआ है, और वो है कि nth प्रोजेक्टाइल का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे पैटर्न देखो, पहले वाले का u1 sin theta 1, सेकेंड वाले का e into u1 sin theta 1 वर्टिकल, थर्ड वाले का e स्क्वायर, फोर्थ वाले का e to the power 3, फिफ्थ वाले का e to the power 4, यानी nth वाले का e to the power n minus 1, देखो e to the power n minus 1 और u1 sin theta 1, और हॉरिजॉन्टल तो है ही u1 cos theta 1। ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया ऑफ द nth प्रोजेक्टाइल, व्हिच इंक्लूड्स द फर्स्ट वन आल्सो, फर्स्ट वन भी इसमें इंक्लूड है। अगर मैं n के जगह 1 पुट करूंगा तो u1 sin theta 1 u1 cos theta 1 इसी का ही है, और उसके बाद तो nth वाले का निकल ही जाएगा। ठीक है, विश्वास, इज दैट ओके नो? आई थिंक Aran has also given the answer. कई सारे आंसर्स आए हैं and I think they are all on right direction. लावण्य, शाश्वत, उत्कर्ष, योग। सर एक बार थीटा बता दो सर। थीटा में कुछ नहीं है, यही वाला है, tan थीटा, मतलब इसी का वो होगा रिजल्टेंट। तो tan थीटा क्या होगा, vy by vx, तो u1 तो कैंसिल हो गया, sin थीटा 1 by cos थीटा 1 tan थीटा 1 है, e to the power n minus 1 tan थीटा 1। ओके सर। चलो, so that was about your infinite projectile various specifications, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स होंगे, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं वो फाइनाइट ही, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज आई से एक प्रोजेक्टाइल को हमने, चलो ऐसे कर, ऐसे लॉन्च किया, और ये है, quickly find out the velocity vector here at the landing. Find out the velocity vector just before landing. The question is, find v vector just before landing. Quickly. शिवराज has asked कि क्या significant figures होंगे? So it's insignificant right now. सर एक बार वैल्यूज देखो। 50, 37. ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके जमीन पे हिट करेंगे, to find out the velocity vector just before strike, just before landing.
Akshat has given an answer, and that is 40 I cap minus 60 J cap. That's a quick answer. Then apart from that, you also find out the time of flight and the horizontal range. ठीक है, Shashwat, Vishwas, they have also started giving the correct answer. बिल्कुल सही. Adhar has given the answer for 20 root 3. Is it for range? No, range के लिए तो नहीं होगा ये. Utkarsh has also given 40 I cap minus 60 J cap. Shashwat as well. Adhar has written 20 root 13. बेटे 20 root 13 किस चीज के लिए है? Can you highlight? सर मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया, मैंने वो निकाल दिया, उसका नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड ठीक है, निकाल दिया. पर मैंने इससे वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, जरा ध्यान से देख. ओके सर. Okay, now other questions also coming up slowly, and that is time of flight, 9 seconds. ठीक है. She is also given 9 seconds. Shashwat 9 seconds. Okay. इस बार भी अगर वो y component के velocity का अगर tracking ठीक से करते हो तो बहुत जल्दी आ जाता है. अब मैं बताता हूँ कैसे. देखो ये तो obvious है कि इसका जो horizontal velocity वो 40 है और जो vertical velocity वो 30 है. तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, 3 सेकंड नीचे जाने में, यानी 6 सेकंड पे वापस आ जाएगा और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी 30 हो जाएगा. 3 सेकंड 6 सेकंड बाद वापस भी आएंगे वहां पे और डाउनवर्ड वेलोसिटी 30, हॉरिजॉन्टल तो खैर 40 सेम ही रहेगा. अब जो लास्ट पार्ट है उसका देखो कैसे करें हम लोग ना. इस पे ना कई बार जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम देख के और आंसर चॉइसेस को देख के हम बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं. कैसे? देखो अभी अगर 30 है तो अगले सेकंड बाद क्या होगा? 40. यानी एवरेज कितना हो गया? 35. अच्छा एक ट्रेंड और देखना, हर सेकंड देखना 10 10 10 10 10 बढ़ता जाएगा अगर नीचे जा रहा है, और अगर ऊपर जा रहा है तो देखना हर सेकंड में 10 10 10 10 घटता जाएगा. क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. तो देयरफॉर पहले सेकंड में डाउनवर्ड इसने 35 कवर किया, तो अगले सेकंड में वो कवर करेंगे 45. तो कितना हो गया? 35 प्लस 45 80. उसके अगले सेकंड में कितना कवर करेंगे? 55. तो 80 प्लस 55 इज हाउ मच? 135. और देखो 135 ही दिया हुआ. यानी क्वेश्चन में कोई लिखने का भी जरूरत नहीं है, तुमने फटाफट आंसर निकाल लिया कि वो जो नीचे वाला हिस्सा है 135 मीटर उसको कवर करने के लिए एग्जैक्टली 3 सेकंड्स चाहिए. तो नाउ आई थिंक यू विल कंप्लेन कि ये तो 135 स्पेसिफिक वैल्यू है. अगर मान लो 135 नहीं दिया है, जैसे मान लो 145 दिया, तो क्या करेंगे? देखो तो इन दैट केस इतना तो पता चल गया ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट 9 सेकंड से थोड़ा ज्यादा होगा. देखो ये भी तो हेल्पफुल हो गया ना कहीं ना कहीं. अब मान लो 4 ऑप्शंस है, एक 9 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा इसमें एक दिक्कत पता है क्या होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, एंड दैट विल ऑब्वियसली टेक टाइम. जबकि ये वाला जो मेथड है, अच्छा अगर यहाँ पे मान लो है 7235, तो तब थोड़ी यूज करेंगे ये वाला मेथड. 7235 तक थोड़ी ट्रैक करेंगे. लेकिन ये जो हाइट दिया गया दैट्स अ रीजनेबल हाइट, ये 2-4-5 सेकंड में कवर हो जाता है और वो कैलकुलेशन तो माइंड में आराम से कर सकते हैं. तो क्यों ना हम पहला कोशिश यही करें. तो देयरफॉर ये 135 पे कैसे निकाला? देखो 30 और 40, मैं फिर से एक बार फटाफट बता देता हूँ. 30 और 40 का एवरेज 35, और इसके बाद देखना 10 10 10 10 बढ़ता जाएगा. 35 प्लस 45 80 प्लस 55 135. देखो आंसर आ गया 3 सेकंड. तो 6 सेकंड तो वापस आने में लगा और 3 सेकंड यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 9 सेकंड्स. तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने उस दिन मेथड सिखाया था ये बहुत काम का है. अगर मान लो 145 भी है तो एक दो चीजें और बता सकता हूं. इज दैट थोड़ा सोच के देखना, 9 तो होगा ही होगा, अगले सेकंड में ये 65 कवर करेंगे, अगले सेकंड पे ये 65 कवर करेंगे टोटल. तो ध्यान से देखो, सपोज 2 ऑप्शंस है, मान लो एक 9.1 सेकंड है या 9.2 सेकंड है और एक 9.9 सेकंड है, तो इतना तो पता चल गया ना कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा. नाउ यू माइट से कि ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑप्शंस है 9.2, 9.4, 9.7 और 9.8. फिर क्या करोगे? फिर तो हाथ खड़े कर देंगे, फिर तो हम प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन को सॉरी फिर तो हम इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. देखो वो रास्ता तो हमेशा ही ओपन है ना. जैसे इस केस में क्या करेंगे, मैं इसका हाइट हो गया -1 -145, यानी मैं इक्वेशन बनाऊंगा -145
is equal to u sin theta 30 into t minus half gt square. तो ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाता, ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा है ना, लेकिन इसको सॉल्व करने में हेडेक होगा क्योंकि रूट के अंदर आने वाला। ऑन द अदर एंड जो मैंने मेथड बताया वो आई थिंक फॉर ऑप्शन चॉइसेस ऑफ 9.2 एंड 9.9 इट्स अ रीजनेबली सेफ ऑप्शन, क्योंकि 135 मीटर्स तक वो नीचे जा चुका है 9 सेकंड्स, बचा बस 10 मीटर और अगले सेकंड पे अगर पूरा सेकंड का टाइम दे दो तो वो 65 मीटर्स कवर करने वाले, तो ऑब्वियसली पहला 10 सेकंड तो उसको काफी पहले ही हो जाएगा ना। तो देयरफॉर आउट ऑफ दीज टू चॉइसेस अगर मान लो 9 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में दो चॉइसेस भी हुआ तो भी हो सकता है कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े एंड यू विल बी एबल टू गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना। शाश्वत प्लीज एक्सप्लेन अगेन। शाश्वत कौन सा चीज एक्सप्लेन अगेन करने के लिए बोल रहे बेटे? सर वो पहले मैसेज भेजा था, वो क्या कहते हैं जब आपने एक्सप्लेन कर दिया उसके पहले। अच्छा चलो, हाँ कुछ बोल रहे थे यू। सर जो ये वाला तरीका है सर, वर्टिकल वाला जो आप बता रहे सर, इसमें हमने जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाली सर, उसके बाद क्या करना है? नहीं समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकला, पहले तो 30 फिर 40 तो यानी एवरेज के 35, यानी एक सेकंड में वो 35 मीटर कवर करेंगे, ये पहला सेकंड की बात है। फिर अगले सेकंड में क्या होगा, 10 10 10 10 10 10 10 बढ़ता जाएगा लगातार कंटिन्यूअस। तो पहला सेकंड 35, फिर अगले सेकंड 45 तो 80 हो गया, अगले सेकंड 55 तो 80 प्लस 55 यानी 135, और 135 भी पूछा था पहले। मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि अगर 135 ना भी हो तो भी ये मेथड अच्छे से तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर 145 भी हुआ तो यानी 135 से 10 मीटर और आगे, जबकि उसके अगले सेकंड पे पूरे सेकंड पे वो 65 मीटर और कवर करेंगे। क्यों? 35 45 55 हो चुका है, अब उसके अगले सेकंड में 65 कवर करने वाला, जबकि एक्चुअली अभी और 10 ही मीटर बचा है, क्योंकि 135 पर 10 मीटर और बचता है। तो ऑब्वियसली 10 मीटर क्या होगा ना, पहले वाले फ्रैक्शन में ही हो जाएगा। तो अगर मान लो बाई चांस ये दो ऑप्शंस भी हुए तो इन दैट केस फिर भी तुम, हाँ अगर ऑप्शंस ये है अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो देयर इज नो वे, अब तो तुमको ये वाला मेथड से ही करना पड़ेगा, देन ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर वे, फिर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज़ दिस इज लाइक टू रिस्की, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वर्टिकल मोशन में g का वैल्यू जो 10 है और जो एवरेज वाला कंसेप्ट मैंने समझाया उसका हमेशा, प्रोजेक्टाइल में भी नहीं, वर्टिकल मोशन इन जनरल और प्रोजेक्टाइल में, इन दोनों में हमेशा फायदा उठाने का कोशिश करना, ठीक है ना। आज टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल देने वाला था जहां पे मैं पत्थर को यहां से उल्टा फेंकी, वहां पे भी देखना उसका यूज तुम कर सकते हो, ठीक है। यानी आई एम ट्राइंग टू अवॉइड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बस और कोई बात, देयर इज नथिंग एल्स। बट एनीवे द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो गया, जब मैंने 135 दिया था तो 3 सेकंड बाद आया, तो हॉरिजॉन्टल तो 40 होगा और वर्टिकल में क्या होगा ना, 30 तो यहाँ पे है, 3 सेकंड बाद क्या होगा 60, यानी ये हो गया 60। तो देखो 40 आई कैप माइनस 60 जे कैप, ये तो हो गया पहला 40 आई कैप माइनस 60 जी। रेंज तो आई गया, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट 9 सेकंड और हॉरिजॉन्टल यानी क्या होगा 360 मीटर। 9 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40, तो 9 into 40 360, दैट्स इट, है ना। चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल जस्ट रन आउट ऑफ टाइम। तो कल सीपीटी के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। सीपीटी इतना कोई टफ नहीं है तो इसलिए डोंट वरी ऑन दैट, प्रिपेयर करो अच्छे से, जस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव डन, आई मीन नथिंग मोर देन दैट। और जो मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दिया था वो थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 डिवाइस वाला, और कैसे फोटो खींच के पीडीएफ बनाना है, फर्स्ट पेज में क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही जगह पे, एंड द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आई होप यू विल फॉलो देम डिलिजेंट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, tomorrow we will be continuing with the CPT, and then day after tomorrow we will be continuing with this topic. Fine, चलो okay बेटे, आज के लिए इतना ही, have a good day, bye bye, थैंक यू सर। thank you, have a good day। सर हम इसको एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल भी अज्यूम कर सकते हैं ना? किस टाइप का प्रोजेक्टाइल? सर इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल भी। Actually I don't know what do you mean by complete projectile. First of all, projectile is a projectile, there is nothing complete or incomplete, और ऐसे मत सोचो कि horizontal to horizontal is some kind of a complete projectile, ऐसा कुछ सर नहीं, मतलब example of projectile। यस सर, horizontal सर हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं। देखो horizontal to horizontal को एक नॉर्मल जनरल प्रोजेक्टाइल हम लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं, it is either sum of the equations of time of flight and horizontal range
that we derived assuming horizontal to horizontal. But that does not mean that that is some kind of a general projectile or ऐसा कुछ. Everything is a projectile. इसको ये भी एक जनरल प्रोजेक्टाइल का पार्ट भी समझ सकते हैं ना. नहीं, वो भी एक जनरली प्रोजेक्टाइल था विद अ स्पेसिफिक वैल्यू की हॉरिजॉन्टल लेवल. ये भी एक जनरल प्रोजेक्टाइल है विद अ स्पेसिफिक वैल्यू की स्लाइटली लोअर देन हॉरिजॉन्टल लेवल. कल को उल्टा भी हो सकता है, स्लाइटली हायर देन हॉरिजॉन्टल लेवल. रिट्रेस नहीं कर सकते हैं. हाँ? तो रिट्रेस नहीं कर सकते पीछे की तरफ. सब रिट्रेस प्रोजेक्टाइल में हर केस में रिट्रेस होगा, हर केस में. जैसे अगर तुम यहाँ पे ये वेलोसिटी से दिया है तो वो वहां पहुंचा, अगर मान लो 40 और 60 को रिवर्स कर दो, ऐसे कर दो, तो देखना एग्जैक्टली रिट्रेस करके यहाँ पे आएंगे. सर उसके पीछे अगर चले जाएगा तो एक जनरल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ना, जो फर्स्ट केस वाला हमने किया था हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज समथिंग व्हिच वी कैन कॉल एज अ जनरल प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ जनरल प्रोजेक्टाइल. उसके अंदर हम लोग कुछ इंपोजिशंस डाल देते हैं कि ग्राउंड पे रीच कर जाएगा ऑल, दैट इज आवर हेडेक. बट प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ जनरल प्रोजेक्टाइल, चाहे कोई सा भी केस हो. अब उसके अंदर हम स्पेसिफिकेशन अलग अलग करते रहते हैं, तो लेट्स नॉट गिव नेम्स टू ऑल दिस प्रोजेक्टाइल. ऑल आर जनरल ओनली. कोई प्रोजेक्टाइल में एक ही रूल चलता है, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड हो, चाहे ग्राउंड से बिलो हो, चाहे ग्राउंड से टॉप हो, चाहे कोई सा. देयर इज नो डिफरेंसेस. ठीक है ना. But anyway, these are just we are I think probably debating on the usage of words. I mean, so I don't think it is a very fruitful debate. I mean, so let's conclude this way that projectile में rules बदलता नहीं है. जो हमने पहले दिन वेक्टर इक्वेशन किया था प्रोजेक्टाइल, that is the beginning and the end of projectile. उसके बाद अपना स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं. ठीक है ना. So I think we have just crossed beyond time. We will carry on tomorrow. Thank you, Vishwas. Thank you, Lavanya. Let's सर कल आपकी क्लास होगी? ये नहीं पता, वो तो देखो ऐसा है ना, एक सीपीटी होगा, 2 क्लास होगा, पता नहीं किसका क्लास होगा. Who knows? देखते हैं. ओके, थैंक यू सर. बाय बाय.